Namaste. Welcome to this global online Ramlila festival. It's the first of its kind in the world. It's going to bring together countries from around the world to perform Ramlila, this Ram Katha, as told in two styles. You will see the dramatic theatrical style or the Natya Dharmi style, and then you'll see the Lokadharmi style, Maidani, in the open air. The last one is a kind of very old style of performing that's still present in countries like Trinidad, Suriname and Fiji, and in many parts of North India. So this is the first of its kind in the world. And because of the COVID-19, many places will be unable to perform the Leelas they normally do. So Ayodhya Research Institute has decided to put together videos from the different parts of the world where they perform the Ramlila and to showcase for you the different styles. The Indira Gandhi National Center for the Arts will also be joining with the Ayodhya Research Institute in sharing their archives of different performances that they have recorded across India, Southeast Asia, and even Russia. So I invite you to enjoy this festival for nearly 30 days. रामायण सतकोट या पारा। रामायण कितने रूपों में कहाँ कैसे विस्तारित है, अयोध्या शोध संस्थान से शोध करते हुए जो निष्कर्ष मिल रहे हैं वो अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। कलिंग युद्ध के बाद पहली बार भारतीय संस्कृति का माइग्रेशन दूसरे देशों में हुआ। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखें तो जो पूर्वी तट है हमारा, उड़ीसा, तमिल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से जो कला हमारी कलिंग युद्ध के बाद 200-300 ईस्वी पूर्व से जो विस्तार हुआ, तो साउथ ईस्ट एशिया में वो सारे कला रूप हमें मिलते हैं। भारत के हर राज्य में, हर भाषा में रामलीला का आयोजन होता है और दुनिया के अंदर भी लगभग हर भाषा में, हर देश के अंदर रामलीला का मंचन किसी न किसी रूप में होता है। राम सब जगह है, राम सबके। इसलिए राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र है। साथियों, दुनिया कितने ही देश राम के नाम का वंदन करते हैं। वहां के नागरिक खुद को श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जिस देश में है वो है इंडोनेशिया। वहां हमारे देश की तरह कालीन रामायण, स्वर्णदीप रामायण, योगेश्वर रामायण जैसी कई अनूठी रामायण, राम आज भी वहां पूजनीय है। कंबोडिया में रमकेर रामायण है, लाओ में तालाब रामायण है, मलेशिया में हिकायत शेरी राम, तो थाईलैंड में रामाकेन है। आपको ईरान और चीन में भी राम के प्रसंग तथा राम कथाओं का विवरण Om Swastiastu. The Ramayana story is very famous in Indonesia, especially in Bali. Balinese Hindus must know Ramayana story. Therefore, the Ramayana story was introduced from an early age. Various methods are used to teach Ramayana story through lesson in school,
through arts, be it painting, music, dance, and other. One of the most famous performance in Bali is the Kecak Ramayana dance. This Kecak dance is music from the moods of the dancer, a cakcoir from the dancer. Nenten sido yang jadi mata mereka sing nyidang penuh saja jangan sejauh yang tadi mata
The second is Wayang Wong. Wayang Wong is basically the arts of performing march and puppet with human or person actor. In presenting the character phrase, all the dancers have a dialogue. All the main character use the Kawi language. In some parts of the show, the dancer will also sing by performing the important couplets of Kakawin Ramayana.
Those are some ways to introduce the Ramayana story in Balinese people. Om Santi 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 Om. द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। समाचार बहुत गड़बड़ है महाराज। क्या कहा गड़बड़ है? हाँ। क्या समाचार लाए हो? अरे वो बंदरी का बच्चा वहाँ पता नहीं कैसे पहुँच गया पाताल में, और एक ही गदा में अहिरावण महाराज का काम तमाम कर दिया। क्या कहा? हाँ महाराज। पुत्र अहिरावण मारा गया? हाँ महाराज। ओह, हनुमान नाम का बंदर वहाँ भी पहुँच गया? हाँ महाराज। हमारे दिल में और कोई बचा हुआ है? कोई नहीं बचा हुआ है। कोई नहीं बचा है। तो आज स्वयं मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मेरा रथ तैयार करो, और एक बात याद रखना, कोई भी योद्धा यदि युद्ध स्थल से पीठ में आकर के यदि भागा तो उसे मैं अपने हाथों से समाप्त कर दूंगा। इसलिए जिन्हें युद्ध से भागना हो और युद्ध में मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम लोग सोच लो कौन मेरे साथ जाएगा? हमको छुट्टी दे दीजिए। गौरी नारायण जीवन भर मेरे लंका में खाया है, और आज युद्ध करने का समय आया तो छुट्टी मांग रहा है। तुम्हें अपने प्राण बहुत प्रिय लग रहे हैं। रुक जा, मैं पहले तुझे छुट्टी कर दे रहा हूँ, फिर मैं युद्ध करूंगा। छुट्टी नहीं दूंगा। चल मेरे साथ। बम महादेव, मेरा बड़ा भाई रथारूढ़ होकर रथ पर बैठकर अनेक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर संग्राम करने के लिए आ रहा है। प्रभु, न आपके पास रथ है, न पैर में पराक्रम है, ऐसे वीर बलवान के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे प्रभु? जिससे जय होती है वह रथी दूसरा है। इसमें दैव और ध्वज दो पहिए लगे रहते हैं। क्षमा ममता दया रूपी रथों की बंधे रहते हैं, और ईश्वर का नाम ही चतुर्काती का काम करता है। ऐसा जय रथ जिसके पास है उसके जीतने के लिए तो शत्रु ही नहीं है, फिर रावण महाराज की बात ही क्या है? जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। Hallelujah!
सामने खड़ा है। मेरे पुत्र रंजीत का घाटी, मैं इस युद्ध स्थल में तुझी को तो ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर शीतल करूंगा अपनी छाती। आज तो संग्राम भूमि नहीं छोड़ करके भागा, तो आज मैं तुझे उस विकराल काल के हवाले कर दूंगा। साधारण बाल समझ रहा था, किंतु ये तो मुझे मूर्छित कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूंगा। छोटा वाला था, बस बहुत धीम हाँक रहा था। तो बहुत हमारा ठीक है। मेरे बहादुर, इसे उठाओ, औरत पे रखो, ले चलो उनका। कुछ नहीं रहा है, हटा। मैं स्वयं ही उठाऊंगा, वो लोग नहीं उठा पाएगा। बम महादेव, हर हर महादेव। तो द्रोही देवताओं का महान द्रोही स्त्री चोर कुमारक कामी, जो सारे जगत के आधार शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, दुष्ट अपने अपवित्र हाथों से उन्हें छूना चाहता है। नहीं देख रहा कि हनुमान इधर खड़ा हुआ है। अरे बंदरी के बच्चे, जहाँ देखो वहीं टपक पड़ता है। ठहर तो जा, आज तुझे पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि रावण के सामने तेरा मुकाबला है। बस ठहर जाओ। परीक्षा लंकेश, तुम्हारी एक मुस्तिका अब हमारी मुस्तिका सहन करो। जय श्री राम। धन्य है जिस भौम पे तू उत्पन्न हुआ है, वो भौम धन्य है। तेरे माता पिता को धन्य है, जिस रावण के सीने में दिग्गजों के दांत लग कर
खट खट टूट जाते थे। आज वो रावण तेरे एक मुष्टिका से पृथ्वी पर गिर गया, इसलिए तू धन का पात्र है। लंकेश, उस भूमि को तो धन्य है जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता को बारंबार धन्य है, लेकिन मेरे पर को बारंबार धिक्कार है, क्योंकि किस मुष्टिका के लगने से बड़े बड़े पहाड़ रसातल में समा जाते थे, लेकिन वो मुष्टिका खा करके देवताओं का द्रोही अभी तो जीवित खड़ा हुआ है। आखिर में है न ये बंदर, थोड़ी सी तारीफ कर दी उछलने कूदने लगा। चलो रावण के साथ युद्ध हो रहा था। इधर जैसे थोड़ी देर के लक्ष्मण के साथ से मैं अलग हुआ, रावण को समय मिला, उन्होंने पुनः ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण की अचेत अवस्था में है। भैया लक्ष्मण, तुम्हारा जन्म कोई निशाचरों का विनाश करने के लिए हुआ था। तुम देवताओं के रक्षक और इन निशाचरों के भक्षक हो, किंतु तुम छोटी छोटी शक्तियों को खाकर इस तरह मूर्छित हो जाते हो, मुझे बहुत ही कष्ट होता है, इसलिए तुम उन अच्छा, क्या उसने कुछ कर दिया क्या? तो बड़ा वाला अच्छा बैठ गया वो। कोई बात नहीं है, हो जाने दे, कोई बात नहीं है। मेरे बहादुरों, देखो अब मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ, शत्रु नाशक यज्ञ, इसलिए तुम लोग पहरा देना, कोई यहाँ बंदर ना आने पाए, ठीक है? मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। हमारे महाराज क्या कर रहे हैं? हमारे महाराज शत्रु नाशक यज्ञ कर रहे हैं देवी जी के मंदिर में। यज्ञ करने से क्या अभिलाषा है? शत्रु का नाश हो जाएगा। यज्ञ नहीं याग कर रहा है। अगर वह याग सिद्ध हो गया तो सिद्ध होने पर वह भाग मरेगा नहीं, इसीलिए बंदर भागों को भेजकर उस अपवित्र यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करवा दीजिए। हनुमान जी, अंगद जी, प्रिय बंदर भालू आप सब जाएं और रावण का यज्ञ विध्वंस कर दें। यज्ञ होंठ वहां से करके पराजित हुआ तो यहाँ आकर के बगुला ऐसा ध्यान लगा करके बैठा है, देखो ना किस तरह से। लेकिन है तो ये बहुत ही बहादुर संग्राम करने वाला, लेकिन ध्यान नहीं टूटा है। तुम्हारे उलाटा और क्या करो, यज्ञ
ध्वस्त कर दो। मैंने क्या कहा था, कोई भी बंदर यहाँ ना आने पाए, ये लोग कैसे आए? जबरदस्ती आके भाग कर आकर गाँव क्या कर रहा था? सुखदेव जी, विभीषण जी, आप लोग सेना संभालिए, हमारा रावण का युद्ध देखिए। ऐसे कुलभूषण लंकेश महाराज प्रणाम। विजयी जिन योद्धाओं के ऊपर तूने विजय प्राप्त किया है और योद्धाओं में इस लंकेश रावण को न समझना। रावण लोग बजा गए बंदे खाना, बाकी मेरा नाम रावण है, रावण जिसके बंदी खाने में रात पर दिन पर किसको देवता पड़े रहते हैं। खरदूषण, कृष्ण, विराट और बाली और योद्धाओं में इस लंकेश रावण को न समझना। तुमने बड़े बड़े निष्ठाओं को समझा दिया है, यहाँ तक कि हमारे भाई कुंभकर्ण जैसे पुत्र इंद्र जी, ऐसे योद्धाओं का तूने श्रृंगार किया है, किंतु उनमें से उस लंकेश रावण को न समझना। आज उन सबों का बैर आज मैं तुमसे चुकाऊंगा। यदि तो शुद्ध स्थल छोड़कर ना भागा तो आज मैं उन सबों का बैर तुमसे चुकाऊंगा। आज मैं तुझे विकराल काल के हवाले करूंगा, क्योंकि आज तो कठिन रावण के पाले पड़ा है। महाराज, आपकी प्रभुताई सब सच है, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जैसे आम, कटहल, गुलाब। आम जो है फल भी देता है और फूल भी देता है, उसी तरह के एक मनुष्य है जो कहते भी हैं और करके भी दिखला देते हैं। जैसे कटहल फल देता है, फूल नहीं देता है, उसी तरह के एक मनुष्य है जो कहते नहीं किंतु करके दिखला देते हैं। जैसे गुलाब फूल देता है, फल नहीं देता है, उसी तरह के एक मनुष्य वो है जो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, परंतु कर कुछ नहीं पाते हैं। उसी में से एक आदमी है सामने खड़ा है तो तू मुझे ज्ञान सिखा रहा है? उस समय तुम मुझसे नहीं सोचा था कि लंकेश रावण से शत्रुता कर रहा हो, इसका परिणाम क्या होगा? आज तुझे अपने प्राण ये लग रहे हैं।
मेरा भाई भीषण रहता है, जो मेरे भेद को अच्छी तरह से जानता है। यदि वो बता दिया मैं मारा जाऊंगा, इसलिए सबसे प्रथम विभीषण को इस्तेमाल कर देता हूं। ठीक है ना? अरे राम के अस्तित्व होने पर भी तुमने मुझे मारने की चेष्टा की। लो मेरा जो विभीषण कभी लंकेश के सामने नजर नहीं उठाता था, आज वो लंकेश के सामने डराने करके युद्ध करने के लिए आया है। जिसको तुमने निकाल दिया, आज तेरे सामने लोहा ले रहा है। आज मेरे साथ संग्राम कर।
परीक्षा दे रहे हैं। प्रभु नाभि मध्य पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल पाता। प्रभु इसके नाभि में अमृत का वास है, इसीलिए यह अभागा मर नहीं रहा है। इसीलिए 31 बाण का प्रयोग कीजिए, 20 बाण से 20 भुजा को काट लीजिए और 10 बाण से 10 मस्तक को काट लीजिए और 1 बाण से इसके नाभि में जो अमृत है उसका शोषण कीजिए। अभागा तो वैसे पड़ा हुआ है। उसने भेद बता दिया, ऐसे मैं समझ रहा था कि विभीषण भेद अवश्य बता देगा। कोई बात नहीं है। रावण महाराज राजनीति बतला दीजिए। प्रभु वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भैया तुम खड़े किधर से हो? सड़के तरफ से। मैं भैया लक्ष्मण, यही तुम्हारी पहली भूल है। जिनसे विद्या ली जाती है उनकी चरणों की सेवा करके, इसलिए चरण की तरफ से खड़े होकर हाथ जोड़ के बोलो। रावण महाराज पंडित हैं, विद्वान हैं, चारों वेदों की ज्ञाता हैं, वो तुम्हें राजनीति अवश्य बतलाएंगे। रावण महाराज राजनीति बदला दीजिए। रावण महाराज राजनीति बदला दीजिए। रावण महाराज राजनीति बदला दीजिए।
जी महाराज, राजनीति बतला दीजिए। जी और अपने बड़े भाई को बुलाना। प्रभु आपको बुला रहे। लंकेश महाराज प्रणाम। विजयी भव। आपने मुझे याद किया। मैंने आपको याद किया। राम, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ इस युद्ध में विजय किसकी हुई? इस युद्ध में विजय हमारी हुई। ये किस प्रकार से? ये इस प्रकार से कि मैंने आपको रणस्थल में प्राप्त किया हो। नहीं श्री राम, इस युद्ध में विजय आपकी नहीं बल्कि विजय इस लंकेश रावण की हुई। आपकी विजय हुई? हाँ। किस प्रकार से लंकेश? वो इस प्रकार से कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता था कि श्री राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है, हनुमान कौन है। कैसे में बड़ियाई सीता का हरण किया जानबूझ करके और आपसे शत्रुता ठान लिया और एक एक वीर को आपके सामने भेज भेज कर उस युद्ध में मरवा कर और आपके धाम को भेज दिया। और आखिरी में ये लंकेश रावण स्वयं मर करके आपके धाम को जा रहा है। अब आप बताइए कि इस तरह से विजय किसकी हुई? क्योंकि राम हमरे जियत हमार पुर लखो न लखन करार और तुम्हारे जियत तुम्हारे पुर जात हूँ डंक बजाए। बताइए क्या आप मुझे रोक सकते हैं? आप में ये शक्ति है कि आप रावण को अपने धाम जाने से रोक सकते हैं? लंकेश महाराज, नहीं तो मैं आपको रोक सकता हूँ। इस प्रकार से विजय आपकी हुई। हाँ महाराज, इस तरह से विजय लंकेश रावण की हुई। मैं यही जानना चाहता था। आपको मेरा कोटानी कोट प्रणाम। और आप जा सकते। लक्ष्मण आगे आओ। तुम क्या सीखने के लिए आए हो? राजनीति। राजनीति। तो ये बताओ, सबसे प्रथम क्या तुम्हारे अयोध्या में राजनीति या विद्या मार मार के ली जाती है? नहीं महाराज, फिर सेवा करके। सेवा करके। तो लक्ष्मण, आज तुम्हारे भाई के बाण मेरे रोए रो में चुभ चुके हैं, बोलने की शक्ति नहीं है। और आज तुम मेरे सामने खड़े होकर पूछ रहे हो कि लंकेश रावण मुझे राजनीति बताइए, मुझे राजनीति बताइए। तो बताओ, ऐसे समय में तुम्हें क्या राजनीति बताऊं? लक्ष्मण, यदि तुम सारे छल कपट को त्याग कर लंका में आते और शिष्य बनकर यदि मुझसे राजनीति पूछते तो मैं सब कुछ भुला करके, बैर विरोध भुला कर तुम्हें राजनीति बताता, क्योंकि शिष्य पुत्र के समान होता है। खैर, ज्यादा तो नहीं, लेकिन दो चार राजनीति अवश्य बता दूंगा। सबसे प्रथम राजनीति ये है लक्ष्मण, धनुष पे बाण चढ़ाओ और 27 कदम पीछे हट जाओ। ये सबसे बड़ी राजनीति है, इसे याद रखना लक्ष्मण। शत्रु से हमेशा 27 कदम पीछे होकर के बात करना चाहिए। ये सबसे पहली राजनीति है, क्योंकि अपना शत्रु युद्ध स्थल में मर गया हो अथवा बेहोश हो, मूर्छित हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे 27 कदम पीछे होकर के बात करना चाहिए और अपने शस्त्र को हमेशा तैयार रखना चाहिए। वो इसलिए लक्ष्मण, जिस तरह से आज तुम मेरे सामने यहाँ पे खड़े थे, जब भी मैं शस्त्र लेकर तुम्हारे ऊपर हमला कर देता, तुम्हें मार देता, तो तुम क्या कर सकते थे? कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं। इसी तरह से अपने शत्रु से 27 कदम पीछे होकर के बात करना चाहिए। पहली राजनीति है।
दूसरी राजनीति शुभ शीघ्रम, शुभ काम जितना जल्दी हो जाए उसे कर डालो, उसे टालो नहीं उसे, और अशुभ काम जितना टाल पाओ उसे टाल दो। आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, ऐसे करते करते टालते हो। और शुभ काम शुभ शीघ्रम, यदि सोचो कि मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, अभी तत्काल कर डालो, क्योंकि ये शरीर इसका कोई ठिकाना नहीं है लक्ष्मण, कब है और कब नहीं। जैसे मैंने शुभ काम कुछ सोचा था, जैसे मैंने ये सोचा था कि ये समुद्र खारा है, इसे पटवा करके मीठा बनवा दूंगा, इस खारे जल को कोई पीता नहीं है, यदि इसे मीठा करवा दूंगा तो सब लोग पिएंगे। ये मैं कर सकता था, लेकिन मैं कर दूंगा। मेरे बंदी खाने में पड़े रहते थे, सूर्य और चंद्र मेरे कहने से उदय अस्त होते थे, पवन मेरे यहाँ झाड़ू लगाता था और यमराज मेरे यहाँ पहरा देता था, ब्रह्मा मेरे यहाँ मेरे ध्वनि करने के लिए आते थे, भगवान शिव स्वयं पूजा कराने के लिए आते थे। इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, वही कल कल करते आज वही काल स्वयं भक्षण कर गया। और अशुभ काम जैसे सीता का हरण करना था, मुझे बहुत लोगों ने समझाया, किंतु मैंने किसी का नहीं कहना माना। मैं तत्काल जाकर के सीता का हरण कर लाया। मुझे माली ने समझाया और मुझे मालवंत ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, भाई विभीषण ने समझाया, लेकिन मैंने किसी का कहना नहीं माना और विभीषण को लात मार करके भगा दिया। ये सब मैं जानता था, लेकिन कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, आज वही काल मेरा भक्षण कर दिया लक्ष्मण। इसलिए शुभ शीघ्रम, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुत करेगा कब। लक्ष्मण यही बात याद रखो, और अब तुम भी जा सकते हो। तुमको भी मेरा प्रणाम। अब बोला नहीं जाता है राम राम। देवेंद्र जी, आप अपने भाई का दांत संचार कर दीजिएगा। आपका भाई